the combined families are there. And we have a lot of people where they are guiding us, and we have a lot of people who tell us facts who are old, so probably they are not very clear with the scientific knowledge. So actually, you are not supposed to eat for two people, but you are supposed to take a healthy, balanced diet. The requirement of calories increases during pregnancy, but not that you are supposed to eat for two people. You have to eat to maintain a steady weight gain, especially after the third month of pregnancy. Our pregnancy, as most of you must be knowing, is divided into three parts: the first trimester, second trimester, and the third trimester. So usually in the first trimester, there is so much of vomiting, so you cannot eat that much. But second and third trimester, you have to eat a little more than what you were eating before, but not that you can eat anything more. You have to eat healthy food. You have to consider to eat more of proteins. Proteins in Indian scenario is a lot of dals and pulses, soya beans. And if a person is non-veg, you can have non-vegetarian food, but not that you have to eat double of what you are eating, which most people ask me when they are in the OPD, that should I eat double, or the grandmother keeps complaining she doesn't eat enough and this and that. So you don't really need to eat double, because otherwise then there will be so much weight gain that it will be difficult to deliver the baby, or it may be injurious for your health later on. So don't eat double, eat a little more, but eat nutritious and balanced food. Yes, among that also calcium, iron, all that nutritions are important, protein. Yes, you can divide your food, let's say your whole plate into 3 to 4 portions, and it should all contain of different colors. This is what I tell my patients, that Yes, you should have yellow colored dal. Every time, every meal should contain pulses. So whichever pulse you like, you should take. Then roti, wheat is good for health because it has high fiber also. Don't eat a lot of flour, which is maida, because then that is refined and it is not so good for health, contains very little fiber. Then you should have salads again, which contains vitamins and good fiber. And then you should have green leafy vegetables, because again, we have to have, this is a balanced diet, which every pregnant lady should take. And rice in moderate quantities. Now, there are communities where they are predominantly dependent on rice, like the South Indians, for their food. They can have rice, but then have to have vegetables for high fiber, because otherwise fiber is less in rice. So then sometimes they have problems with their digestion and they get a lot of constipation and all. Have a lot of green vegetables, salads, and your vegetables should also be of all the colors. Like you can have spinach, and then you can have all the beans. Okay. yes, And you can have yes, carrots. So you should see that you have all the colors on your plate. yes, yes. Ma'am, for the people who are eating, I mean, mother who are eating non-vegetarian food, so the seafood is allowed. I mean, it can be you can have it during pregnancy or not. Yes, seafood can be had during pregnancy, and it is very important here in Vapi because we are very close to Daman, and there are a lot of people who come to me who are from the coastal regions, and they have a lot of fish. So seafood, as such, is not bad for health, but then you have to be very choosy regarding that. That there are some foods which are fishes which contain mercury, so they are found in the salted seawater, which is a little polluted. So one thing is that there are some fishes like tuna and all, who which are not good for health because mercury is toxic, and you should not take fishes which contain mercury. So take fresh food which is from the freshwater sea, and which is not from the polluted waters. Another thing which is very important is that you should wash the fish very well. The seafood which you are taking has to be washed many times with water, because if there are any pollutants inside the fish, it should be cleared, and it should be cooked very well. You should not eat raw seafood. Raw seafood
will contain injurious substances sometimes and may not be good for the baby. As such, if you eat good amount of fish during your pregnancy, it's not a bad idea, because fish contains a lot of DHA, which is very good for the health of the child, for the development of the brain of the child. So that is not a bad idea, but be selective. Don't take raw seafood or half cooked seafood, and don't take the mercury containing fish. Yes, yes. एंड दूसरा क्वेश्चन मोस्टली मदर को ये होता है कि घी खाना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ लास्ट 9 मंथ में, तो नॉर्मल डिलीवरी में वो हेल्प करता है. सो इज इट ट्रू और इज इट अ मीथ? Oh, this is a very, I think every lady comes with this thing कि last जैसे 9th month start हुआ, मम्मी starts giving ghee in chai and ghee in milk and ghee in dal, because ghee is very slippery and probably, and I really wished it was true, because my job would have been so much easier if ghee could have helped in normal delivery. We have to understand that whatever we are eating goes into our जनरेटर, मतलब जो हम खा रहे हैं ना, वो हमारे अन्य नली में जाता है, और हमारा जो बच्चा है ना, वो तो हमारी बच्चेदानी से नीचे से बाहर निकलता है. तो जो हम खाते हैं वो हमारी जो अन्न नली में जाता है, वो नीचे से बच्चे की डिलीवरी में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता है. ये बहुत बड़ा मिथ है कि घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, बल्कि घी खाना एज इट इज, अगर हम बहुत मॉडरेट क्वांटिटीज में खाते हैं तो घी नुकसान नहीं करता है, लेकिन घी प्योर फैट होता है. और अगर कई बार ये होता है, अगर हम लास्ट मंथ में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि हम हैवी हो जाते हैं, उतना मूवमेंट नहीं होता, और हम प्योर फैट वाला घी खूब ज्यादा क्वांटिटीज पे नॉलेज से खाते हैं कि शायद ये हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगा, तो उल्टा होता है कि मदर का और बेबी का इतना वेट गेन हो जाता है कि शायद वो नॉर्मल डिलीवरी होने ही नहीं देता. सो दिस इज अ वेरी सैड न्यूज कि घी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प नहीं करता है. इट्स प्योर फैट. ओके, ओके. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्मोकिंग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्योंकि कोई लोग करते हैं, जैसे उनके हस्बैंड भी करते हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट होता है मदर पे या बेबी पे? स्मोकिंग मतलब एनी क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग अच्छी नहीं है. जैसे आप अभी मिडिल क्लास में, अभी इंडिया में शायद इतनी स्मोकिंग इतनी प्रेवलेंट नहीं है, बट हायर क्लासेस में और लोअर क्लासेस में, स्पेशली लोअर क्लासेस में स्पेशली पूछना पड़ता है कई बार, क्योंकि बहुत सारे जो लेबर क्लास लोग रहते हैं वो बीड़ी स्मोक करते हैं, और हायर क्लासेस में कई बार जो लेडीज होती हैं वो सिगरेट्स भी स्मोक करती हैं. और दूसरा, जो आपके अगर हस्बैंड या आपके घर में दूसरे कुछ लोग हैं, वो अगर स्मोक करके जो स्मोक है उसको रिलीज करते हैं, तो वो जो धुआं होता है वो लेडी इनहेल करती है, उस चीज को कहते हैं पैसिव स्मोकिंग. तो एक्टिव स्मोकिंग, अगर आप खुद से स्मोक कर रहे हो, एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग, दोनों ही आपके बच्चे के लिए बहुत इंजूरियस होते हैं, क्योंकि इसमें से जो निकोटीन निकलता है वो आपके प्लेसेंटा पे जाके जम जाता है. जो आपकी खून की नसें हैं जिससे आपके बच्चे को खून मिलता है, उन नसों में ये जो निकोटीन है वो जम जाता है, और जितना खून आपके बच्चे को उस टाइम पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है. और सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर स्मोकिंग हुई तो कई बार बच्चे का जितना वेट होना चाहिए उतना हो नहीं पाता, उसका पानी कम होता है, और कई बार बच्चे को दिक्कतें रहती हैं. तो प्लीज इतना केयरफुल रहो. अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने आप को डी एडिक्ट कर लो. और अगर आपके घर में स्मोकिंग कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप इतना ध्यान रखो कि एटलीस्ट वो आउटडोर जाके स्मोकिंग करें, घर के प्रेमाइसेस के अंदर स्मोक नहीं करें, ताकि जो धुआं होता है वो बाहर रिलीज करें, ना कि घर के अंदर. तो आजकल मैंने देखा है कि नया ट्रेंड है, हस्बैंड्स भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं और हस्बैंड्स भी बहुत कंसर्न होते हैं. तो डेफिनेटली अगर हस्बैंड स्मोक करते हैं तो वो ध्यान रखेंगे कि वो घर के बाहर ही जाके स्मोक धुआं निकाले. हाँ. यस, यस. और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मदर के ये भी रहते हैं कि वो कहीं बाहर जैसे जाएं
तो हील वाली चप्पल पहनना है, इज इट अलाउ? घर में तो हेयर कलर कर सकते हैं, इज इट अलाउड हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इज इट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ। तो बहुत सारे ये कॉस्मेटिक चीजें आजकल बहुत रोल में आ रही है, बिकॉज वर्किंग मदर्स रहती हैं एंड दे वांट टू गो आउट। प्रेगनेंसी को एक बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करना चाहते, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। अब दो तीन चीजें हैं एज फार एज हील वाली चप्पलें। नाउ क्या होता है कि देखो, हील वाली चप्पलें इज नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन प्रेगनेंसी में हमारा जो पोस्चर होता है ना, वो थोड़ा चेंज हो जाता है फर्स्ट मंथ में। अगर आप यूज टू है पहले से हील वाली चप्पलें पहनने के लिए, और आप अपने आप को अच्छे से बैलेंस और कंट्रोल कर सकते हैं, तो पहले 3 महीनों में अगर आप कंट्रोल्ड वे में पहनते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बट यू शुड बी द हैबिट ऑफ वेयरिंग। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने कभी पहनी नहीं और प्रेगनेंसी में पहली बार पहन लिया और गिर गए, गिरना नहीं है। ओके, बट अगर आप सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्या होता है, हमारा जो पोजीशन होता है ना हमारी बॉडी का, वो धीरे धीरे थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बैकबोन है वो थोड़ी आगे हो जाती है बेबी को सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो एक्स्ट्रा वेट रहता है वो भगवान ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं रखा, सारा एक्स्ट्रा वेट आगे रहता है, तो हमारी बैकबोन थोड़ी आगे की तरफ, जिसको हम लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं, वो हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारा जो बैलेंस होता है बॉडी का, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, स्पेशली 7th 8th मंथ के बियॉन्ड। तो मेरी एक्चुअली मेडिकली हम कहेंगे हील्स से कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर मेरी ये एडवाइस है कि एटलीस्ट 7th मंथ के बियॉन्ड आप मत पहनो, क्योंकि खुद का बॉडी बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और अगर आपने वो पतली वाली पेंसिल हील्स पहनी है तो बैलेंस बिगड़ सकता है। इफ एट ऑल आपको पहनना है तो आई वुड एडवाइज यू शुड वेयर ब्लॉक हील्स वेयर द बैलेंस is not disturbed, एंड यू वेयर इट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पूरे पूरे दिन आप पहन के चलेंगे तो आपको पैरों में दर्द होएगा उसकी वजह से, बिकॉज आपका लंबर लॉर्डोसिस और वेट की वजह से आपके पैरों पे जोर ज्यादा पड़ रहा है। एज फार एज हेयर डाई इज कंसर्न, हाँ, हेयर डाई में थोड़े केमिकल्स होते हैं जो कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपको इनहेल नहीं करने चाहिए। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी कि आप अगर हेयर डाई करते हैं तो आप प्रॉपर ग्लव्स पहन के करिए उनको, क्योंकि अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो वो आपके हाथों में वो डाई लगेगी नहीं। और आप बहुत अच्छे से हाथ धोइए, क्योंकि ये अमोनिया वगैरह अपने बेबी के लिए इंजूरियस हो सकता है। तो वो डाई लगाने के बाद बहुत अच्छे से हाथ धोइए, और बहुत फ्रीक्वेंटली डाइज मत यूज करिए। और बहुत सारी वेजिटेबल ओरिजिन की भी डाइज मिलती हैं मार्केट में, तो इफ यू कैच होल्ड ऑफ अ वेजिटेबल ओरिजिन डाई विदाउट केमिकल्स, तो वो बेटर रहेगा प्रेगनेंसी में। तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप केमिकल डाइज यूज कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि you should wash your hands very well and remove it as soon as you feel that the work is done. राइट, राइट। सो उसके जो वो केमिकल को इनहेल करने से भी आप कहते हैं कि हाँ, उसमें हाँ, इनहेल, क्योंकि आपने अपने लगाया तो यूज अ शावर कैप और समथिंग कवर योर, क्योंकि उसमें से थोड़ा आप स्मेल रहती है डाई में। अगर आप राइट, यूज करो तो उसमें थोड़ी अल्कोहलिक सी स्मेल रहती है, तो व्हेन यू पुट इट ऑन योर हेयर देन कवर योर हेयर विद अ शावर कैप और अ क्लॉथ, जितने टाइम वो रहेगा। और आपके ट्रू, जो हाथ रहते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से वॉश कर लो, क्योंकि फिर वो हाथ में लगी है अगर, एंड यू bring it near your nose and all, it's not good for health. ट्रू मैम। आजकल वैसे अमोनिया फ्री डाइज भी मिलती है, तो यू कैन प्रेफरेबली यूज दोज। बट देन अमोनिया फ्री, पर उसके अलावा दूसरे केमिकल्स आर देयर जो हेयर कलर हाँ, होते हैं। हाँ, एक्चुअली ये प्रॉब्लम इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो इस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, मतलब इफ यू बिकमिंग प्रेग्नेंट सो यू आर नॉट गोइंग टू बी ओल्ड, है ना। यस, तो यस। डाई, हाँ, डाई कम ही यूज करते हैं लोग उस एज ग्रुप के। ट्रू। पर डेफिनेटली दिस इज अ क्वेरी, केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। यस, यस, यस। और कॉमन कॉस्मेटिक रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलवेज देयर इज फॉर स्ट्रेच मार्क्स, क्योंकि आगे जाके हाँ, हाँ, व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर तो स्ट्रेच मार्क्स आते, तो फिर कितने टाइप की क्रीम लगाते, ऑयल लगाते, या पहले से अप्लाई करते, या घर की कोई मेथड कुछ हो उनके पास आइडिया तो फिर वो अप्लाई करते। तो ये इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट आर द टिप्स, और जो ईचिंग आती है उसके लिए क्या करना चाहिए? हम्म, अम,
ये बहुत बुरी न्यूज है हमारी प्रेग्नेंट मदर्स के लिए कि ये जो स्ट्रेच मार्क्स है ना, ये अगर आपको होने हैं, ये आपकी टोटली स्किन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ये स्ट्रेच मार्क्स होते क्यों हैं? क्योंकि जो आपकी स्किन है वो, आपका बच्चा जब अंदर आया तो वो बच्चा जो बच्चेदानी है वो बड़ी होती है तो आपकी स्किन स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होती है तो वो खिंचती है तो वो एक अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, इसके लिए स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। अब ये कॉस्मेटिक कंपनीज ने बहुत एडवर्टाइजमेंट्स करने शुरू कर दिए हैं कि बायो ऑयल और ये क्रीम स्ट्रेचनल वगैरह वगैरह, ये लगाने से स्ट्रेच मार्क एंड दे शो एक पतली सी एब्डोमेन जो कि बिना स्ट्रेच मार्क्स के होंगे। बट वेरी वेरी सॉरी टू से, कोई भी ऑयल या क्रीम या एनीथिंग आपके स्ट्रेच मार्क्स को कम नहीं कर सकती है। आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा, आप उसको लगाना शुरू कर देंगे कि शायद ये नहीं लगाए होते तो मेरे ज्यादा होते, ये लगा रही हूँ तो शायद मेरे थोड़े कम है। बट ये स्ट्रेच मार्क्स जो है वो बिल्कुल भी इन ऑयल से कम नहीं हो सकते। ये आपकी स्किन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, आपके बेबी के साइज पर डिपेंड करता है। अगर बेबी अच्छे साइज का है, स्किन ज्यादा स्ट्रेच होगी तो ज्यादा स्ट्रेच मार्क होगा। स्किन बेबी का साइज छोटा है, कम होगा। फिर कितनी प्रेगनेंसीज आपको पहले हो चुकी है उस पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि स्किन उतनी टाइट है या लूज है। लेकिन ये ऑयल्स वगैरह ये सब मार्केटिंग टैक्टिक्स है, ये सब हमको हेल्प नहीं करती स्ट्रेच मार्क्स रिड्यूस करने में। तो वी कैन यूज इट, बट डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ये इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहती है ये करने में। मैम साथ में ईचिंग भी बहुत होता है, या तो उसके इचिंग, लिए इन क्या कर सकते हैं? इचिंग अगेन, जो ये स्ट्रेच होती है ना स्किन, तो स्ट्रेच होने की वजह से स्किन पे इचिंग होती है। उसके लिए हम कोई भी घरेलू लुब्रिकेंट्स यूज कर सकते हैं स्किन पे, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल और एनी ऑयल, या ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स यूज कर सकते हैं। राइट। तो उससे इचिंग कम हो जाएगी। एक दूसरी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसको कोलिस्टेसिस प्रेगनेंसी कहते हैं, उसमें थोड़ी इचिंग जरूरत से ज्यादा होती है। बल्कि अगर वो इतनी ज्यादा हो रही है कि पैरों में हाथों में मार्क्स हो रहे हैं, यू कांट स्लीप बिकॉज ऑफ द इचिंग, तो आप अपने डॉक्टर को बताओ, तो आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी में कोलिस्टेसिस हो रही है क्या। और अगर ऐसी हो रही है तो फिर उसकी कुछ दवाइयां हैं, वो आप लेंगे तो आपको उस इचिंग से रिलीफ हो जाएगा। दूसरा, अगर जैसे हमारे यहाँ के जैसा क्लाइमेट है तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, तो प्रेफरेबली आपको बहुत सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में थोड़ी स्वेटिंग ज्यादा होती है। अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो आपको रैशेस और ये सब होने की संभावना ज्यादा रहेगी। स्पेशली आपके अंडर क्लोथ्स वगैरह, आप कॉटन क्लोथ्स पहनिए आप, तो वो कूल रहते हैं, एब्जॉर्बेंट रहते हैं, तो उससे भी इचिंग कम होती कम हो है। एंड देन जाएगी। नॉर्मल इचिंग के लिए कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आप यूज कर सकते हैं, नॉट एन इशू। राइट, राइट। मैम प्रेगनेंसी 9 मंथ का पीरियड है, सो इट इज वेरी लॉन्ग पीरियड। तो जो वर्किंग वुमन है या जो हाउसवाइफ भी है, तो उनको भी बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। तो वेदर दे कैन यूज 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वो यूज कर सकते हैं, और कब तक, टिल द एंड ऑफ देयर प्रेगनेंसी, यानी 9 मंथ तक कर सकते हैं? देखो, टू व्हीलर्स में थोड़ा ऐसा है कि आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट के 7th 8th 9th मंथ में टू व्हीलर्स को थोड़ा अवॉइड करो, बिकॉज टू व्हीलर्स में क्या होता है कि यू हैव टू बैलेंस द व्हीकल। कई बार ऐसा हुआ कि हो सकता है कि ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ, तो यू मे हैव टू किक इट आल्सो, एंड समटाइम्स व्हेन यू आर इन अ ट्रैफिक, सो यू हैव टू पुट योर लेग डाउन एंड बैलेंस योर व्हीकल। First month में, if you're going for very short trips, the road is good first 3 months में, then इतना बड़ा issue नहीं होता, because your baby is inside your pelvic bone, तो वो एक बोनी केज से प्रोटेक्टेड रहता है। तो बैलेंस, और आपका बैलेंस परफेक्ट है, आपका वेट गेन इतना नहीं हुआ है कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्स्ट 3 मंथ्स में शॉर्ट डिस्टेंसेस, गुड रोड, मानसून नहीं है, यू कैन यूज अ टू व्हीलर। एंड सेकेंड,
trimester, that is from the 4th to the 6th month, okay, you can use it again with caution, क्योंकि थोड़ा बहुत टमी बाहर आता है पर बैलेंस ठीक रहता है. बट 7th 8th 9th में टू व्हीलर आई वुड अवॉइड, बिकॉज अगेन यू हैव टू बैलेंस इट, और आपका खुद का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है, थोड़ा इधर उधर हुआ, यू कैन फॉल with the two-wheeler on you, and that is not good for your health. As far as four-wheelers are concerned, four-wheelers are quite safe because there is nothing like balancing the scooty or anything like that. But it will be very safe if you use a seat belt. I mean, make it mandatory whenever, in whichever age of pregnancy, चाहे first 3 months, चाहे middle 3 months, चाहे last 3 months, इवन फुल टर्म पे भी आप फोर व्हीलर पे बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन हमेशा हमेशा सीट बेल्ट जरूर लगाइए, बिकॉज कोई भी पीछे से धक्का मार सकता है. ये आपको मालूम है, इंडिया के ट्रैफिक रूल्स कोई मानता तो है नहीं, तो प्लीज सीट बेल्ट जरूर लगाइए. Yes. And ma'am, what about traveling by rickshaw? Okay, again, rickshaw is safe because again, you don't have to balance anything. Yes. But again, the roads and the traffic. So if you are going to a place where you know that there are lots of ditches in the road and the rickshaw wala is going to jump and all that, I would say if you have an option, you can use a private vehicle of yours. Okay. But as such, rickshaw is not dangerous. Even in the full term, you can use a rickshaw. Because क्या है कि, and if when you are pregnant, the rickshaw is also a human being and can see that you have a tummy, and you can even inform them that, see, I'm pregnant, please drive slow, please don't jump on the ditches, don't drive very fast. So I think they will take care. So that is what you have to do, is just that tell that fellow to be careful, because Right. the rickshaw will not have a seat belt. True. Yes. और उसके अलावा बाय फ्लाइट किसी को जाना है, जैसे मदर्स प्लेस किसी को डिलीवरी करवाने जाना है, दूर है, तो वो कब तक जा सकते हैं? और ऐसे भी अगर जो फ्लाइट में बैठना है, तो इज इट सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, फ्लाइट ट्रैवल्स आर सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ऐसा कुछ मेजर इश्यूज नहीं रहते हैं फ्लाइट ट्रैवल्स में. ओनली थिंग इज यू शुड कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट, कि स्पेशल you should not be having any special conditions like a placenta previa or a problem where you can have some side effects like a bleeding or something like that. So if you're traveling by flight, not an issue. But there are certain restrictions by the flight people per se, that most of the flights do not allow traveling after 32 weeks. 32 weeks means 7.5 to 8 months of pregnancy. तो जो भी फ्लाइट से आप अपनी बुकिंग करवाते हैं, उनके वेबसाइट पे जाके आप चेक करो कि वो कितने मंथ्स तक आपकी ट्रैवल अलाउ करते हैं. नॉट दैट बिकॉज इट इज वेरी अनसेफ, बट इसलिए कि उनको डर रहता है कहीं आपको प्रीमेच्योर पेन्स ना हो जाए, या फ्लाइट एक आधा लोग कभी डिलीवर भी हो गए हैं फ्लाइट्स में, तो कहीं आपकी डिलीवरी फ्लाइट में नहीं हो जाए, या आपको वाटर बैग नहीं रप्चर हो जाए तो आपको फ्लाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी. सो फ्लाइट्स के रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं. ज्यादातर जो कंपनीज है वो 32 टू 34 वीक्स के बाद आपको ट्रैवल नहीं कर रहे देंगे, तो उस आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हम कितने वीक्स की हमारी प्रेगनेंसी है. बट फ्लाइट ट्रैवलिंग इज नॉट अनसेफ. आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं आराम से. अच्छा, यानी आपका कहना है कि जो हाइट पे वो जाते हैं, तो उससे इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीथिंग, या कुछ भी तकलीफ नहीं होगी प्रेगनेंसी? नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं होगी. ओके. और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मतलब आप एस्मेटिक है या कुछ है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट बाकी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं. ओके. राइट. उसके अलावा जैसे जिनके घर पे मदर इन लॉ या और दादी सासू ऐसे रहते हैं, हेलो, तो हेलो, आर वी लूजिंग सम कनेक्शन? हाँ, नो मैम, ओके, नाउ इट्स ओके. या आई कैन हियर यू नाउ. यस. तो उन लोगों को मोस्टली अगर जो एक्सरसाइज के बारे में वो घर पे पूछे प्रेग्नेंट वुमन, तो ना बोलते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. पहले के जमाने में तो अभी भी लोग ऐसा मानते हैं. तो व्हाट जो फिजिकल एक्सरसाइजेज है वो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इज इट अलाउड टू डू एक्सरसाइजेज? हाँ, एक्सरसाइज
आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए प्रेगनेंसी में। फर्स्ट 3 मंथ्स में भी करनी चाहिए, बट देर आर लिमिटेड एक्सरसाइजेस कि आप बहुत स्क्वाटिंग वगैरह फर्स्ट 3 मंथ्स में मत करो, पर रूटीन अपने वॉकिंग और थोड़ा हाउस होल्ड वर्क और रूटीन एक्सरसाइजेस आप अपने हाथ की पैरों की वो आप फर्स्ट 3 मंथ्स में भी कर सकते हो। और बाद में तो आप एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, हाथ पैरों की तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो थोड़े स्क्वाट्स वगैरह भी करने चाहिए, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके पेट का जो मसल टोन होता है वो अच्छा हो जाता है, आपकी जो नीचे पेल्विक मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती है। जब आपकी मसल स्ट्रांग होती है, जो जैसे ही आपका बेबी का वेट बढ़ता है तो आपको नहीं तो हिप जॉइंट में और यहाँ बैक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप बैक की एक्सरसाइजेस करोगे तो आपकी मसल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान वीक हो जाती है वो स्ट्रांग रहेंगी, तो आपकी बैक पेन नहीं होएगा, आपके हिप जॉइंट में पेन नहीं होगा। प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि सारी मसल्स और सारे जॉइंट्स लूज हो जाते हैं। अब अगर सारी मसल्स और जॉइंट्स आपके लूज हो जा रहे हैं और आप एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, अनलेस कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी का, कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है, या आपको 2 बच्चे जुड़वा बच्चे हैं, या आपकी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, बहुत एज में हो रही है प्रेगनेंसी, या आपको कोई थ्रेटेंड अबॉर्शन है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मत करिए। लेकिन अगर आप रूटीन नॉर्मल प्रेगनेंसी में है तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज करिए, उससे आपका डाइजेशन बेटर रहेगा, आप जो खा रहे हो वो कैलोरी कंजम्पशन बेटर रहेगा, तो आप बहुत ओवरवेट नहीं होगे। और प्लस आपको वो डिलीवरी में घी ना खा के एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगी, क्योंकि आपका स्टेमिना अच्छा रहेगा, आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम अच्छा रहेगा, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को डॉक्टर मैत्री से कंसल्ट करके एक्सरसाइजेस करनी ही चाहिए कि यस, कौन वी कौन सी नो के एक्सरसाइजेस करनी है। इमेंस उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट टू डू एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट आपकी नोट क्या है एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कि आप मदर इन लॉ या जो घर में सीनियर सिटीजन उनको कैसे कन्विंस करना है या उनको हाँ कैसे वो समझाना है? हम्म, वो थोड़ा मुश्किल है एट टाइम्स इफ देयर इज अ कंजर्वेटिव मदर इन लॉ, बिकॉज कई बार द आंसर दैट आई गेट इज कि घर का काम सब करती है, तो दे फील कि इफ शी कैन डू हाउस होल्ड वर्क सो दैट इज एक्सरसाइज इनफ। बट सी, घर का काम इज अ वेरी रूटीन वर्क, तो एंड इट इज नॉट इंटरेस्टिंग एट टाइम्स कि वही खाना बनाना, वही झाड़ू एंड ये, सो इट डजंट गिव यू एनी रिक्रिएशन। तो उसमें एक लिमिटेड एक्सरसाइज होती है, लेकिन जो एक्सरसाइजेस हमें प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल है ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होती। नॉट दैट घर का काम नहीं करना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, बट आपके मेंटल रिक्रिएशन के लिए अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपका बॉडी ज्यादा फिट रहेगा, आप मेंटली भी थोड़े आपको उससे रिलैक्सेशन होएगा, आपका आपके ब्रेन में भी सर्कुलेशन बेटर होएगा, तो यू विल गेट अ गुड नाइट्स स्लीप आल्सो बिकॉज ऑफ दैट। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम घर का काम आप ये करिए। तो यूजुअली हमको हमारा ये टैक्ट रहता है कि हम मदर इन लॉ को सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि अगर आपने एक्सरसाइज करने दी तो नॉर्मल डिलीवरी में जरूर हेल्प करती हूँ। समटाइम्स विल से कि फिर हो जाएगी ना नॉर्मल डिलीवरी, सो दैट इज अ ट्रिकी थिंग, बट इफ यू यस, टेल देम दैट ये नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेगी तो वो सब रेडी हो जाते हैं। यस, 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 बिल्कुल। और उसके अलावा जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम है, तो वो हाउस होल्ड वर्क में ब्रीदिंग होती एक्सरसाइज ही नहीं नहीं है। होती है। हाँ अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेल्विस की एक्सरसाइजेज रहती है, वो भी आप कोई भी काम करो तो पेल्विस की मूवमेंट या नहीं इतनी होती है। नहीं होती। फॉर दैट हाँ यू हाँ नीड एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज और हाँ हाँ हाउस हाँ होल्ड हाँ वर्क इज डिफरेंट। हाँ, जो हाँ फिजिकली आप बोल रहे हैं, जैसे झाड़ू निकालना या मॉपिंग करना या ऐसा है, तो वो एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली बोल सकते हैं। बट स्टिल एक्सरसाइजेस को तो वो नहीं कर सकती कंपैरिजन रिप्लेस का। नहीं कर।
yes, yes, कुछ yes. लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनके थोड़े ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं, मतलब बच्चे थोड़े 4th 5th बच्चा हो रहा है, और सारे बच्चे यूजुअली अगर नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं तो उनको एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, कि True. मतलब कि जो आप हमारी नीचे की जो पेशाब की जगह है वो छोटी और लूज हो जाती है, तो खांसने या छींकने से पेशाब थोड़ा लीक कर जाता है। तो उन सब कंडीशंस के लिए अगर आपने प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक एक्सरसाइजेस करी होती हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का, वो बहुत कम हो जाता है। और बल्कि इवन प्रेगनेंसी के बाद भी अगर आप पेल्विक एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अवॉइड हो सकता है। नहीं तो कई बार काफी मैसी हो जाता है लोगों के लिए, कि खांसी आई तो पैड लगाना पड़ता है बिकॉज यूरिन थोड़ा लीक होने लगता है। Right, right. हम्म, जो कंट्रोल रहता है वो इनवॉलेंट्री हो जाता है, कंट्रोल खुद करने यस, रहता है। हाँ, यस, यस। तो इसमें कीगल्स एक्सरसाइजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यस, which give very good results. यस। कई बार यू डोंट रियली नीड एनी सर्जरी और एनीथिंग, सिर्फ Yes, एक्सरसाइज से ही यू गेट सो मच रिलीफ दैट यू कैन, yes, you don't really need to do, and you should exercise that in pregnancy also, true. during Yes, when you are pregnant. yes, yes, मैम। और 9 month का पीरियड इज वेरी लॉन्ग पीरियड। उसमें Yes, अगर जो एक्सरसाइज नहीं की तो बॉडी विल बिकम स्टिफ आल्सो आफ्टर डिलीवरी। yes. After that, you will find it very difficult to even handle your own child. You will become so tired because you have राइट, not done any exercise, and then after that, to deliver, and then you don't get proper night's sleep. So then your stamina is so low, and you cannot even handle your own child. So that will become a problem. ट्रू, ट्रू मैम। एंड मैम अपार्ट फ्रॉम दैट स्लीपिंग पोजीशंस इन प्रेगनेंसी, सबको क्वेश्चन रहते कि कैसे सोना चाहिए, साइड लाइन में, सीधा, उल्टा तो डेफिनेटली सबको पता है कि नहीं सो सकते हैं, लेफ्ट साइड लाइन, सो उसमें कौन सी पोजीशन अच्छी रहती है? एंड प्रैक्टिकल इज इट पॉसिबल कि पूरी रात वो एक ही पोजीशन में सो सकते हैं? नहीं। हाँ, ये बेचारी हमारी मदर्स बहुत सफर करती है इसमें, कि बहुत सारे हस्बैंड प्लस मदर इन लॉज को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सीधे सोना चाहिए प्रेगनेंसी में, नहीं तो बच्चे को कुछ हो जाएगा। जैसे आपने बोला उल्टा नहीं सोना चाहिए, आई पुट इट कि फर्स्ट 3 मंथ्स में तो आप उल्टा भी सो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ, ठीक है, ओके, हाँ, क्योंकि बच्चा जो है वो बहुत अंदर अपने एक बोन के अंदर है, यूट्रस के भी अंदर है, आप उल्टे सोएंगे तो भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड उस समय आपके फिर उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद आपका टमी थोड़ा बाहर आ जाता है, तो फिर उल्टा सोना आपको भी कई बार कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो फिर आप उल्टे मत सो। पर कई बार मैंने देखा हस्बैंड्स और मदर इन लॉज विल प्रेस कि पूरी रात आप सीधे सोते रहो। मेरी एक पेशेंट वो बोलती थी कि मुझे बीच रात में उठा देते, अरे तूने करवट ले लिया, सीधे सो सीधे सो। सो इट्स वेरी टायरिंग कि आप पूरी रात एक ही पोजीशन में सो। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि ज्यादा सीधे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो हमारी बड़ी बड़ी जो नसें रहती हैं जिससे हमारे बच्चे को खून मिलता है, वो हमारी जो पीछे की मणके की हड्डी है उसके पास रहती है। और बच्चा भी बड़ा हो गया है, पेट के अंदर है, और हम सीधे सो रहे हैं, तो बच्चे का सारा प्रेशर वो बड़ी बड़ी हमारी खून की नसों पे पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी नसें दबती हैं। और जब वो नसें दबती है तो बच्चे को जितना ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो एक चीज तो फर्स्ट थिंग मेरे मैं जो कहूंगी कि आप अपने लिए सबसे कंफर्टेबल पोजीशन पे सो। आपको अच्छे से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, चाहे आप राइट सो, चाहे आप लेफ्ट लेफ्ट सो, चाहे आप स्ट्रेट सो, और बीच रात में बीच बीच में चेंज करते रहो पोजीशन। उसके ऊपर प्रेफरेबल पोर्शन रहती है कि आप लेफ्ट साइड करवट करके सो, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की करवट रहती है उसमें बच्चे को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलता है, हमारी नसें खुली रहती हैं और बच्चे को सबसे ज्यादा। पर अगेन पूरी रात लेफ्ट साइड पे भी नहीं सोना है, क्योंकि अगर आप पूरी रात लेफ्ट साइड पे सोगे तो फिर आपको उस तरफ पेन होने लगेगा। तो लेफ्ट साइड पे सो, पर बीच बीच में पोजीशंस चेंज कर लो और फिर वापस लेफ्ट साइड हो जाओ। फिर मेरा ये एडवाइस रहेगा कि कुछ अपने लिए कंफर्ट चीजें ले लीजिए, जैसे बहुत सारी सॉफ्ट पिलोज ले लीजिए। तो यू कैन पुट अ पिलो अंदर योर टमी, जब टमी बड़ा हो जाता है तो टमी को सपोर्ट करके आप सो सकते हैं। फिर अगर आपको चलते फिरे प्रेगनेंसी, एडवांस प्रेगनेंसी में पैरों के नीचे सूजन आ जाती है, तो आप रात में 2 सॉफ्ट पिलोज अपने पैर के नीचे रख सकते हैं। फिर ये आपकी जो बैक है
बैक को सपोर्ट करने के लिए एक दो पिलोज आप वहां रख सकते हैं, एक टॉवल रोल करके आप अपने नेक के नीचे रख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी है ना, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है, कई बार एंजाइटी रहती है, कई बार यूरिन के लिए बार बार रात में उठना पड़ता है, तो फिर नींद खुल जाती है, नींद खुल जाती है फिर नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितनी भी आप नींद लें वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में लें, अच्छे से सोए, कोशिश करें कि अच्छे से साउंड स्लीप आपको आए, और अगर आप उठे तो भी आप जब लेटे तो आप अच्छे से फिर से सो सके। मतलब कुछ लोगों को अगर ऐसा है कि एडवांस्ड प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चा पूरा ऊपर तक आ जाता है, तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी छाती पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे एक वाल्व होता है जो पेट का एसिड पेट के अंदर रखता है, प्रेगनेंसी में वो वाल्व ढीला हो जाता है, तो जो पेट का एसिड है वो ऊपर आने लगता है, तो यहाँ जलन, छाती में जलन हो रही है, ऐसे बहुत लोग हार्ट बर्न कंप्लेन करते हैं। तो उन लोगों को मेरी ये राय है कि आप थोड़ा सिटिंग पोजीशन में भी सो सकते हो, मतलब 2-3 पिलो रख लो, और जैसे आप प्लेन में या ऐसे बैठे हो वैसे सो, और पैर ऊपर रखो लेकिन हेड अपना ऊपर रखो। तो अगर आप 2-3 पिलो के ऊपर सोगे तो जो वेल्व है आपका वो ढीला है, तो एसिड ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपना हेड ऊपर रखा है, जिसको हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में प्रॉपर पोजिशन कहते हैं। तो उसमें भी आप सो सकते हो, अगर वो चीज आपको कंफर्टेबल है तो आप वैसे भी सो सकते हो। आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए, प्लस आपकी ये सब मतलब प्रॉब्लम्स भी नहीं होनी चाहिए आपको। तो पोजीशन ऑफ स्लीपिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, बेचारे बहुत लोग परेशान रहते हैं कि अरे कैसे सो कैसे सो, बट यू कैन स्लीप इन एनी पोजीशन, लेफ्ट पोजीशन मोस्ट एडवाइजेबल। यस, वेरी वेल एक्सप्लेन। बहुत सारी आपने इसमें क्वेरी सॉल्व कर दी, क्योंकि एसिड से रिलेटेड कौन सी पोजिशनिंग, फिर यूरिन की प्रॉब्लम रहती है प्रेग्नेंट वुमन को, तो ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट। और बेस्ट आपने जो बताया वो कि जो आपको कंफर्टेबल हो, पर स्लीप अच्छे से लेना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा मैम किसी को क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अगर जो डॉक्टर ने बोल दिया कि बच्चा अभी डाउनवर्ड उसका हेड नहीं आया है, ब्रीच पोजीशन में है, तो सोने से बच्चा दब नहीं जाएगा साइड लाइन या कोई भी पोजीशनिंग में, तो वो मदर की पोजीशन वर्सेस बेबी पोजीशन कैसे रहती है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि जैसे हमने अगर उनको एग्जामिन किया कुछ 8th मंथ में या कुछ, और हमको ये पता चला कि नॉर्मली जो बेबी की पोजीशन पेट में रहती है वो ऐसा रहती है कि जो हेड एंड रहता है बेबी का वो नीचे के साइड पे रहता है, और जो लेग्स और बटक्स है वो बेबी के ऊपर की साइड पे रहते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द बेबी। बहुत बार ऐसा होता है कि 8th मंथ के टुवर्ड्स एंड हम मदर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई अभी बेबी का पोजीशन उल्टा है, जैसे कि जो बटक्स है बेबी के वो नीचे के साइड पे और हेड ऊपर है, तो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल। और अगर इस बीच में कभी भी आपको कुछ पेन्स आए या कुछ आए तो कम इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल। और कई बार ऐसा रहता है कि ट्रांसवर्स पोजीशन रहती है कि बच्चे का जो हेड है वो नीचे रहने के बजाय साइड में रहती है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स है कि शायद मदर इन लॉज यूजुअली बोलते हैं कि ये उल्टा सो गई, ये टेढ़ी सो जाती है, शायद इसलिए, या दे लास्ट में कब इसको करेक्शन करना है तो हम कौन सी पोजीशन में बैठे, कौन सी पोजीशन में सोए, अब इसको सीधा करना है तो एक चीज आप अपने माइंड में कर लीजिए कि ये जो बच्चे की अंदर की पोजीशन है ये आपकी सिटिंग या लाइंग डाउन या स्टैंडिंग पोजीशन से डिटरमिन निर्धारित नहीं होती है। ये जो बच्चे की अंदर की पोजीशन है वो अलग चीजें हैं, जैसे कि आपके जो पेल्विक बोन है, मतलब जो नीचे की हड्डी है वो कितनी बड़ी है। अगर वो जो बच्चे का सर है उसको वो बड़ा होता है और बच्चे के बटक्स छोटे होते हैं, अगर बच्चे पेल्विस की हड्डी अच्छी बड़ी है, उसका आउटलेट अच्छा बड़ा है, तो बच्चे का सर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ये ऊपर वाले ने निर्धारित किया है। लेकिन अगर वो उसका साइज छोटा है तो ये होता है कि बच्चा उल्टा या ब्रीच पोजीशन में होता है, या प्लेसेंटा जो आपकी मैली या केड़ी जिसको बोलते हैं उसका पोजीशन अगर सही नहीं है तो उसकी पोजीशन की वजह से भी बच्चे की पोजीशन आड़ी या उल्टी हो सकती है। या बेबी का साइज, अगर बेबी टू हैवी है
तो उसको नीचे स्पेस नहीं मिलती है, जो अपना पेल्विक बोन रहता है उसमें उसका हेड फिक्स नहीं होता है, इसलिए उसका पोजीशन ओब्लिक या आड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने आप को गिल्टी नहीं ठहराए। बहुत सारे लोग अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि अरे मेरा बच्चा उल्टा हो गया, इसमें मेरी कोई गलती है, मैंने ढंग से नहीं केयर की, मैंने ढंग से सोया नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, ये आपके बॉडी की बनावट इसके हिसाब से है, इसलिए ऐसा हो गया। राइट, तो इट विल नॉट अफेक्ट स्लीपिंग पोजीशन, आप जिसमें सो रहे आप उसमें कंटिन्यू रख सकते सोना। यस यस यस, आपकी स्लीपिंग पोजीशन से आपके बेबी का अंदर का जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी गवर्न नहीं होता, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपके कंफर्ट के हिसाब से रखो, बिकॉज कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी राइट, राइट मैम, तो ये अच्छे से नींद भी आएगी। एंड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रॉपर स्लीप। और उसके अलावा जैसे स्पाइसी फूड के बारे में भी बहुत लोगों को पता ही, वैसे तो पता ही रहता है कि नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऑफ एसिडिटी, बट बहुत लोग प्रिफर करते हैं खाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, ये स्पाइसी फूड खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? है। स्पाइसी फूड अगेन, स्पाइसी फूड की वजह से क्या होता है, यूजुअली प्रेगनेंसी में, स्पेशली जो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी है, और जो हमारी न्यूअर मदर्स हैं, न्यूली मैरिड लेडीज हैं, उनको उनकी हैबिट्स ऐसी रहती हैं कि दे लाइक लॉट ऑफ गोइंग आउट टू द होटल्स एंड हैविंग आउटसाइड फूड एंड ऑल दैट। पर प्रेगनेंसी में एक हार्मोन रिलीज होती है जिसको HCG कहते हैं। वो जो हार्मोन होती है ना, वो हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग को इरिटेट करती है। इसीलिए ये जो हम मॉर्निंग सिकनेस या नौशिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उल्टी होती है प्रेगनेंसी में, वो बोलते हैं, वो इसीलिए होती है कि वो HCG जो हार्मोन होता है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करती है। अब एक कारण तो स्टमक की लाइनिंग बेचारी इरिटेट हो रही है HCG हार्मोन की वजह से, जिसको होना ही होना हुआ, और दूसरा कारण आपने थोड़ी मिर्ची खा ली, अभी तो टेस्ट में वो बहुत अच्छी लग रही है, यू आर फीलिंग कि ओ टुडे, आज मैंने अचार खाया, आज मैंने पानी पूरी खाई, तो दैट इज लाइक वेरी नाइस, आज मुझे डाइजेस्ट बहुत अच्छे से हो गया। बट बट क्या होता है कि फिर बाद में आपको, क्योंकि आपकी लाइनिंग इरिटेट हो रही है, तो उसमें बाद में क्या होता है कि वॉमिटिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं, या वॉमिटिंग अगर नहीं हो रही तो वो इतना इरिटेट करती है कि आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी नहीं होता, तो आपको जल्दी से वापस भूख ही नहीं लगती, बहुत देर तक ऐसा लगता है कि नहीं पेट भरा है ज्यादा, तो आपकी जो न्यूट्रिशन है वो आपको मिलता ही नहीं है, आपको भूख नहीं लग रही क्योंकि आपको लग रहा है नहीं पेट भरा भरा हो रहा है, आई डोंट फील लाइक ईटिंग, है ना। सपोज आपने पानी पूरी खाया, तो पानी पूरी में क्या है, न्यूट्रिशन वाइज जीरो, ठीक है, लेकिन आपने इतने सारे स्पाइसेस और इतना सारा सॉल्ट खा लिया, अब आपने तो खा लिया, एक ऐसी चीज से पेट भर लिया जिससे न्यूट्रिशन जीरो मिला, और आपको लग रहा है अब मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भर गया। So what you are doing is you are taking something which is spicy, irritating your gastric lining, और फिर आप बोल रहे हो खाना नहीं खा रही हो क्योंकि पेट भर गया, तो जो आपको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो आपको मिलता नहीं, प्लस हो सकता है अगर वॉमिटिंग हो जाए तो आपकी पूरा ये इरिटेट होता है क्योंकि इतना मसालेदार खाना आपने खा लिया। तो इसके लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अगेन जो मैंने हार्ट बर्न बताया था आपको कि जितनी एडवांस प्रेगनेंसी होती है उसमें हार्ट बर्न भी स्पाइसी फूड में ज्यादा होता है, तो फिर आपको यह रहेगा कि नहीं मुझे एसिडिटी की गोली खानी है, ये सब चीजें, तो दवाइयां बढ़ती चली जाएंगी, इससे अच्छा कीप इट लो। राइट, राइट। हाँ सो कितना हार्मफुल है एक्चुअल में स्पाइसी फूड खाना, बिकॉज हाँ, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन मिलेगा नहीं, आप जल्दी फुल हो जाओगे, प्लस आपको डिस्कम्फर्ट रहेगा, फिर अगर रात में आपको हार्ट बर्न हो रहा है तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अरे कुछ हो तो नहीं रहा है मुझे, एंशियसनेस बढ़ती चली जाएगी, है ना। यस तो मैम, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता उसकी वजह से। ये सब प्रॉब्लम होती है, राइट। हम्म। मैम उसके अलावा जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत मदर्स को क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पूछते होंगे कि इज इट सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो Okay, this is very important. Rather the husbands come and ask me this. यस, Yeah. uh, uh,
my advice will be, if you go according to the books, then it is not injurious. It is always safe to have sex. That is according to the books. But as a human being and as a gynecologist, what I advise my patients is, in the first 3 months, I will say you should avoid it, because at that time the baby is in the formation stage. The baby is very small, and sometimes if it may be very forceful or traumatic or very frequent, so then it may not be very good. At times there are ladies who may start bleeding, एंड जो हमारा सर्विक्स रहता है ना, दैट इज जो नीचे वाला पोर्शन रहता है यूट्रस का, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ी सूजा हुआ रहता है और उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, तो कभी कभी सिर्फ एक इंटरकोर्स की वजह से वो ब्लीड कर सकता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ऑलवेज बोलती हूँ कि अवॉइड करें। फिर जो सेकेंड ट्राइमेस्टर रहता है, जैसे 4th, 5th एंड 6th मंथ, ये रिलेटिवली सेफ मंथ होता है। इसमें प्रेगनेंसी इतने रिस्क में नहीं होती, बेबी थोड़ा ऊपर चला गया होता है, दैट टाइम इट इज गुड इनफ, दे कैन हैव देयर रिलेशंस। और एडवांस जब 7, 8th एंड 9th प्रेगनेंसी के मंथ्स होते हैं, उस समय इतना हार्मफुल नहीं रहता, लेकिन मैकेनिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज द टमी इज देयर, so I don't want to hurt the tummy, so definitely the frequency should be less and they should be very gentle. Yes, yes. Ma'am, apart from that, one very common question is regarding weight gain during pregnancy. Yes, yes. कि हम मोटे तो नहीं हो जाएंगे प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद भी, वेट सारा लूज होगा कि नहीं? सो व्हाट इज द ऑप्टिमम वेट गेन ड्यूरिंग टिल लास्ट ट्राइमेस्टर तक में टोटल कितना वेट गेन होना चाहिए? आइडियली एक नॉर्मल बीएमआई की जो मदर रहती है, जो अपना उनका स्टार्टिंग वेट रहता है, उससे अपने को 9 मंथ्स के एंड तक ऑलमोस्ट 12 kg वेट गेन होना चाहिए। अब 12 kg इज द एवरेज, आई विल पुट इट कि ऑलमोस्ट 10 से 14 kg के बीच में आपको वेट गेन करना चाहिए। लेकिन ये एक नॉर्मल बीएमआई की मदर के लिए है। Now, suppose there is another lady who may start her pregnancy at a very low weight. Sometimes they're just 34 kg, 36 kg. So at that age, their BMI is very low when they have started their pregnancy. तो for those people मैं ये बोलूंगी कि आप भी मत सोचिए कि आपका जो वेट गेन है वो सिर्फ 12 kg ही होना चाहिए, because you have to later take care of another baby also. So if you have a little more excessive weight gain, so that is good enough. So if you have started at 34, 36 kgs and you have become pregnant, so if you go beyond 14 to 15 kgs of weight also, it is okay for you. But then another lady is who has started at a higher BMI. So now this lady is say already 70 kg or something when she has started her pregnancy. So for those ladies, I will say she needs a weight gain that will ascertain that her baby is growing well. She will be coming for frequent visits. So every time we will see that the baby is growing well. So she needs to gain that much weight where the baby is growing well. But then if she doesn't gain 12 kgs, I will not be very excited about it. Ki theek hai. If she's not gained 12 kgs, but if she's gained say 7, 8 kgs and the baby has grown well, it's good enough, because finally these are not the times when after delivery we mothers would like to have an absurd body which is totally, I mean, we want to live our lives after delivery also, so let us have the chance to do that. और फिर अगर वेट गेन हो भी गया तो इतना घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो कैलोरीज हमारी यूज होती है वो इतनी है, और प्लस हमारे बेबी के साथ उठना बैठना, और प्लस डॉक्टर मैत्री आपको पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस भी बता देंगी, तो उस समय पे भी हम अपना वेट उतार सकते हैं। तो स्टार्व नहीं करना अपने आप को कि नहीं नहीं मेरा वेट गेन नहीं होना चाहिए, या अनहेल्दी फूड खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू हैव टू हैव योर टमी फुल और हेल्दी खाना खाना चाहिए,
एंड वो वेट तो बाद में उतर ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। यस यस। सो और उसके अलावा इंडिया में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि कुछ भी चीज बोलो ना तो पांच में से एक चीज तो ये तो मुझे बहुत गर्म पड़ती है, दिस आर हीटी यस। फूड, देयर आर हीटी सब्सटेंस। उसमें वो बोलो खजूर है, द मोस्ट कॉमन इज रॉ पपैया या पपैया है, पाइनएप्पल है। सो दिस थिंग्स, कभी कभी पोमोग्रेनेट भी कोई कोई मानता है, दाड़म जो हम बोलते हैं कि वो भी बहुत गर्म पड़ता है, ये सारी चीजें गरम मसाला है। तो उससे उनको डर रहता है कि स्टार्टिंग में तो एबॉर्शन भी हो जाएगा और ये सब चीजें खाने से इट विल अफेक्ट माय बेबी। सो पहले तो एग्जैक्टली हीटी थिंग्स क्या है वो भी जानना जरूरी है आपसे, और व्हाट आर द थिंग्स, यानी कौन कौन सी और ऐसी चीजें वी शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, एक चीज तो यही है कि कोई भी चीज गरम या ठंडी होती ही नहीं है। देर इज नथिंग लाइक कि ये चीज गरम है और ये चीज ठंडी है। एंड एट टाइम्स देर आर ग्रैंड मदर्स हु विल एक्सक्लूड हाफ द थिंग्स, एंड देन देर इज अ नेबर, वो दूसरी आधी चीजें एक्सक्लूड कर देगी, और तीसरी एक फ्रेंड आएगी, वो तीसरी हाफ चीजें एक्सक्लूड कर देगी। तो और बेचारी मेरी पेशेंट विल हैव नथिंग टू ईट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि सबने ये मना कर दिया आधा ये, और फिर पता चला पेशेंट के पास तो कुछ है ही नहीं खाने का। तो एक चीज बिल्कुल आप अपने माइंड में रख लो कि कोई भी चीज गर्म या ठंडी तो होती ही नहीं है। अब जैसे आपने पपैया का मेंशन किया, तो बेचारा पपैया यूं ही बदनाम हो गया है। तो पपैया इज अ वेरी गुड फ्रूट, बहुत हेल्दी है, बहुत सारे विटामिन है। और आज तक किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि राइप पपैया प्रेगनेंसी में नहीं खा सकते हो और उसे अबॉर्शन हो जाएगा। बिलीव मी, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत पपैया खाया और फुल टर्म बच्चे हुए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो राइप पपैया हम सब खा सकते हैं। सिर्फ एक वर्ड ऑफ कॉशन है, रॉ पपैया अवॉइड करना चाहिए। रॉ पपैया में कुछ ऐसे लेटेक्सेस होते हैं जो कि ऐसे मानते हैं, मतलब कहीं एक साइंटिफिक एविडेंस भी है इस मामले में कि वो लेबर पेन्स को प्रमोट कर सकता है या मेम्ब्रेन्स को लूज और लीक करवा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रॉ पपैया एक ही ऐसी चीज है जो मैं बोलूंगी कि आप अवॉइड करो। राइप पपैया आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल है, खजूर है, ये आप खा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो बनाना के लिए बोल देते हैं, देर आर पीपल हु से बनाना स्लिपरी होता है तो बेबी स्लिप हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बनाना आपकी अन्न नली में जाता है और बेबी आपकी बच्चेदानी के अंदर रहता है, तो बनाना खाने से बेबी स्लिप नहीं होगा। बनाना इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही पौष्टिक रहता है और उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स रहते हैं, और वो कॉस्टली नहीं है। मतलब एवरीबडी कैन अफोर्ड वन बनाना एवरी डे। और क्या होता है कि जैसे जैसे आपके जो लोग हैं वो अगर हायर क्लास में जाएंगे, दे टॉक अबाउट थिंग्स लाइक कीवी। कीवी खा सकते हैं, यस आप कीवी खा सकते हैं, बट कीवी की कॉस्ट तो देखो। तो ठीक है, इफ यू कैन अफोर्ड अ कीवी, यू हैव अ कीवी, बट देन बनाना इज वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो एटलीस्ट इवन फॉर द पुअर क्लास दे शुड हैव वन बनाना अ डे। और बिल्कुल भी बेबी बनाना से स्लिप नहीं होता है, वो आप खा सकते हैं। फिर एक बहुत ही पौष्टिक चीज है जो है गुड़। गुड़ भी बेचारा बदनाम है। एवरीबडी, एवरी दादी एंड नानी विल कम एंड टेल मी कि गुड़ तो गर्म होता है, बट नो, गुड़ इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। इट कंटेन्स लॉट ऑफ आयरन। और आई वुड से कि जैसे आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट है, डेली एक पीस गुड़ का खाया करो, इट्स वेरी नाइस। एंड बिल्कुल भी कुछ गर्म नहीं होता, गुड़ जरूर खाइए, इट्स वेरी नाइस। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको एग, एग के लिए भी सब लोग ये मानते हैं कि एग एंड नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। उसमें सिर्फ ये है कि बहुत स्पाइसी नॉन वेजिटेरियन फूड मत खाइए, बट इफ यू आर हैविंग 1 और 2 एग्स एक दिन में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 अंडे खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं। ये इन सब में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और प्रेगनेंसी में प्रोटीन चाहिए आपको। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सब चीजें बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है और आप खा सकते हैं। ये पुराना इंडियन माइथोलॉजी है जिसकी वजह से ये चीजें नहीं दी जाती हैं। सिर्फ एक चीज मैं बोलूंगी, कच्चा पपैया, बस। उसके अलावा सब कुछ लोग चाय कॉफी के लिए भी बोलते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं खानी चाहिए। ये नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छी रहती है चाय कॉफी हेल्थ के लिए, बट डेफिनेटली नुकसान नहीं करती है।
कॉफी तो उसमें थोड़ा सा लाइट कैफीन रहता है, इट इज समटाइम्स गुड बिकॉज आप अलर्ट रहते हो उसकी वजह से, तो वो ये चीजें बिल्कुल नुकसान नहीं करती है, आप ले सकते यस, क्योंकि इसमें हमारे इंडियन फिल्म या इंडियन ड्रामा में भी दिखाते कि अभी वो पपाया खाया एंड दूसरा सीन तुरंत आएगा कि हो। यस, अबॉर्शन हो गया। यस यस यस। और कई बार ऐसा होता है कि देर आर लेडीज हु कम कि हमें पीरियड मिस हुआ है एंड आई डोंट वांट दिस चाइल्ड, तो मैंने बहुत सारा पपाया खाया फिर भी मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई। तो यू कैन ट्रू। नॉट हैव एन अबॉर्शन बिकॉज ऑफ पपाया, यू विल हैव टू टॉक पपाया। टू अ डॉक्टर। हाँ। यस यस यस, सच बात है मैम। उसके अलावा क्वेश्चंस रहते हैं कि जैसे प्रेग्नेंट हुए तो फर्स्ट एएनसी विजिट कब करनी रहती है, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा जानकारी दीजिए। यस, प्रेग्नेंट हुए तो जो फर्स्ट एएनसी मतलब पहली बार जब आप किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं, दैट इज आपकी फर्स्ट एएनसी विजिट। मैं बोलूंगी तुरंत, जैसे ही पता चला पीरियड मिस हुआ, तुरंत एक डॉक्टर को मिलके आइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके डॉक्टर आपके बारे में देखेंगे। बेसिकली तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्रेग्नेंट होने से पहले ही एक डॉक्टर को मिल लीजिए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के पहले, क्योंकि आजकल हम सब चाहते हैं कि प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट हो वो एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा हो, और एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा तभी हो सकता है जब माँ प्रेगनेंसी से पहले ही स्वस्थ हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी के पहले एक बार एक डॉक्टर से मिल लिए, आपका हीमोग्लोबिन, थायराइड, थैलेसीमिया टेस्ट, ये सब बेसिक टेस्ट एक बार हो जाएंगे तो आपको मालूम है कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं एक बच्चे को पेट में रख सकती हूँ, दे सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली प्रेग्नेंट हुए तो डेफिनेटली आपको जितना जल्दी आपको पता चले कि मेरा पीरियड मिस हो गया, आपको तुरंत एटलीस्ट अपनी फर्स्ट विजिट के लिए चले जाना चाहिए। क्योंकि एक विटामिन होता है जिसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड, वो फोलिक एसिड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगेन ये भी मैं चाहूंगी कि अगर हम प्लान्ड प्रेगनेंसी रख रहे हैं तो हम प्रेग्नेंट रहने के पहले से ही फोलिक एसिड खाना शुरू कर दें। पर फोलिक एसिड इतना जरूरी होता है कि फर्स्ट 3 मंथ्स में हमारा बच्चा ऑलमोस्ट पूरा बन जाता है। तो अगर हमने फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड नहीं खाई तो कई बार हमारे बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स या तो दिमाग के डिफेक्ट्स हो जाते हैं फोलिक एसिड की कमी की वजह से। तो अगर हम फर्स्ट 3 मंथ्स में डॉक्टर के पास ही नहीं जाएंगे कि जाएंगे अभी तो फर्स्ट 3 मंथ्स है, बिकॉज घर की जो लेडीज है वो समझती है फर्स्ट 3 मंथ्स है अभी तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है। तो आपके बच्चे को जो जब वो बन रहा है वो बच्चा, तो फोलिक एसिड नहीं मिलता। कई बच्चों को यहाँ पे क्लेफ्ट लिप होता है, वो भी इसके लिए होता है कि फोलिक एसिड बच्चों को फर्स्ट 3 मंथ्स में नहीं मिला, बेचारे बच्चे को फिर पैदा होते ही ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में क्योंकि आपको फोलिक एसिड लेना है डॉक्टर से, तो आप डेफिनेटली तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, वो आपकी फर्स्ट विजिट होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि 7वें महीने तक नहीं आते, ये सोच के कि अरे अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 7th मंथ में टीटी का इंजेक्शन लगता है तब जाएंगे। सो देन दैट इज वेरी रॉन्ग, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, आपके बेसिक सोनोग्राफीज होनी होती है। एक चीज होती है जिसको एनोमली सोनोग्राफी कर कहते हैं, 4.5 पौने 5 महीने पे होता है, वो मिस हो जाता है। सो डोंट टेक ऑल दैट रिस्क, अभी तो हमें हेल्दी बच्चा और हेल्दी माँ चाहिए। तो तुरंत जाइए, विटामिन आपकी स्टार्ट हो जाए, आपके फोलिक एसिड स्टार्ट हो जाए, आपके ब्लड टेस्ट हो जाए, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, थायराइड तो नहीं है आपको, वो सब चेक हो जाए। क्योंकि अगेन अगर आपको थायराइड है और तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपने अगर थायराइड कंट्रोल नहीं किया तो मंद बुद्धि के बच्चे हो सकते हैं, तो वो सब ध्यान रखना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं आप डॉक्टर को जरूर विजिट करिए। यस, ये सारी चीजें हिडन है, ये जब टेस्ट करवाते तभी पता चलता है। लोगों को ऐसा हाँ लगता है हाँ कि हाँ मुझे कुछ सिम्टम नहीं है तो क्यों जाओ, बट दीज हाँ। थिंग्स आर वंस वी गेट टेस्टेड तो ही पता चलता है कि वो सारी चीजें नॉर्मल रेंज में है या नहीं। और क्या उसका जो रिजल्ट होता है कई बार वो इतना सिवियर होता है कि अगर आपके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, मतलब वो बच्चा कई बार सरवाइव नहीं करता, या अगर आपके बच्चे को मंद बुद्धि का बच्चा हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपके लिए वो एक इश्यू रहता है कि उसको कैसे संभालें। तो एक छोटी सी गलती का रिजल्ट बहुत खराब होता है, तो एक डॉक्टर के पास जाना है। तो एक आई थिंक जैसे ही पता चले वैसे तुरंत जाना चाहिए। जब इतनी सारी फैसिलिटीज है अवेलेबल, इतने सारे रिसर्च हाँ सब ढूंढा है, तो उसका डेफिनेटली फायदा लेना ही चाहिए। हाँ हाँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, जैसे सोनोग्राफी है, एक्सरे है,
तो लोगों को रहता है कि उसके रेज बच्चे या मदर को इफेक्ट करेंगे, सो वो कितने हद तक इज इट सेफ है, वो उसके बारे में भी जानना है। एक्सरेज बहुत नुकसानदायक है। कभी भी कोई एक्सरे करवाना ही नहीं चाहिए प्रेगनेंसी में। बल्कि कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेग्नेंट है लेकिन उसको दूसरा कुछ इश्यू हो गया, फॉर एग्जाम्पल दांत में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो दांत का एक्सरे निकालना पड़ता है। तो हम लोग को हमेशा बोलते हैं कि आप अपने जो डेंटिस्ट है उनको इन्फॉर्म करिए कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो फिर एक शील्ड होती है जिसको लेड शील्ड बोलते हैं, वो पेट के ऊपर पहना के ही एक्सरे करना है, ताकि वो जो एक्सरेज है वो पेट के ऊपर ना जाए, क्योंकि एक्सरे का एक्सपोजर होने से बच्चे को कैंसर तक होने का डर रहता है। तो एक्सरे तो बहुत बड़ा नो है, किसी को करवाना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपका फ्रैक्चर तक हो जाता है तो भी अगर एक्सरे करना है तो भी लेड शील्ड पहन के ही एक्सरे करना है अगर आप प्रेग्नेंट है। तो एक्सरे बहुत हानिकारक है, एक्सरे का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जिस चीज को बोलते हैं वो बहुत सेफ है। तो उससे बिल्कुल डरे नहीं। कुछ कुछ टाइम्स रहते हैं जबकि ये सोनोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि थर्ड मंथ के एंड में, 4.5 पौने 5 महीने में, और कई बार लास्ट के मंथ्स में। ये 3 सोनोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन है या कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हो सकता है बीच में भी 1-2 बार और सोनोग्राफी करवा लें। सोनोग्राफी के कोई भी रिस्क नहीं है, वो आप आराम से करवा सकते हैं। और बिल्कुल भी ये मत सोचिए और इस टेंशन में मत रहिए कि सोनोग्राफी करवाई है तो बच्चे को कोई उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगा। इट इज एब्सोल्युटली सेफ। इस रेफरेंस में, क्योंकि हमारे आजकल कोविड के टाइम्स है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्योंकि कोविड हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो चेस्ट का सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। तो अगेन सीटी स्कैन नहीं करवाना चाहिए प्रेगनेंसी में, क्योंकि सीटी स्कैन से भी जो रेज आती है वो एक्सरे टाइप की ही रेज आती है, तो वो बच्चे को नुकसान करती है। तो इन केस, अभी तो पता नहीं कब तक ये चलेगा, इन केस यू आर प्रेग्नेंट एंड यू हैपन टू गेट कोविड, so don't get chest ka CT scan, or if you get chest CT then tell the person who is doing the CT कि you are pregnant, और वो एक chest का एक लेड का शीट डालेंगे आपके ऊपर, तो आपके बच्चे को कवर करके फिर CT स्कैन कर सकते हैं। राइट, विद प्रिकॉशन दे कैन डू। यस। हम लोग अब टूवर्ड्स एंड ही जा रहे हैं क्वेश्चंस के, तो जो भी पार्टिसिपेंट मदर है, तो आपके जो भी अगर जो क्वेरी है तो आप चैट बॉक्स में डाल देना, बाद में पूछ भी सकते हैं, और नहीं पूछना चाहते तो यू कैन जस्ट पुट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स सेक्शन। सो मैम, मूविंग टू अ लास्ट क्वेश्चन, एक वजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है। उसके बारे में भी बहुत मीट रहती है कि ये कुछ प्रॉपर हो रहा है नहीं है, कुछ डिफिकल्ट यानी कुछ प्रॉब्लम अंदर नहीं हो, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये टुवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा देखने मिलता है। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका, यानी क्या इसमें ध्यान रखना हाँ चाहिए? हाँ हाँ, इसमें भी मैं ये चाहती हूँ कि हम प्रेगनेंसी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हमारी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं या अपनी जो वजाइना या योनि रहती है, वहां पे जो सर्कुलेशन रहता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो वहां पर उस इंक्रीज सर्कुलेशन की वजह से हमारा जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो कई बार जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज है, वो फर्स्ट 3 मंथ्स में इस बात के लिए बहुत चिंतित रहती हैं कि क्यों हमारा वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ गया है, पहले तो इतना नहीं था। तो नॉर्मली अगर वो डिस्चार्ज में स्मेल नहीं है, ब्लड नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली बढ़ता है। लेकिन अगर उसमें स्मेल है या उसमें कुछ ब्लड का स्टेन है, या वो खुजली या इचिंग के साथ में एसोसिएटेड है, तो आपको डेफिनेटली एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो ये हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये नॉर्मल डिस्चार्ज जो है वो थोड़ा नाक जैसा डिस्चार्ज होता है, दैट इज नॉर्मल, वो आता ही है, उसके बारे में आप टेंशन मत करिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर रिलेटिवली सेफ होता है, दैट इज 4th, 5th एंड 6th मंथ। उसमें डिस्चार्जेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, प्लस
अगर अगेन ये चीज फिर भी होल्ड करेगी कि अगर आपको कोई ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है जिसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है या कुछ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को बताइए, क्योंकि इस टाइम पे वजाइना के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। तो एक बार कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो एक बार चेक कर लेंगे। लास्ट ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जो डिस्चार्जेस हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक पेशेंट को बहुत अच्छे से ये जानकारी रहनी चाहिए कि क्या चीज नॉर्मल डिस्चार्ज है और क्या एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। जो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज रहेगा वो स्टिकी रहता है और क्वांटिटी में थोड़ा रहता है, इतना ज्यादा नहीं। आपको जो प्रेगनेंसी के पहले 6-7 महीनों में रहा है उतना ही रहता है और बिल्कुल भी स्मेलिंग नहीं रहता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी डिस्चार्ज आपको आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है और वो प्रेगनेंसी के दौरान रहता है। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज ऐसा है कि वो बिल्कुल वाटरी है और बिल्कुल ज्यादा प्रेशर में एकदम से रिलीज हुआ है, या जब आप खड़े होते हैं तो रिलीज होता है और सो जाते हैं तो नहीं होता है, और आपके कपड़े गीले हो रहे हैं, इतना ज्यादा डिस्चार्ज है, तो फिर वो एक एबनॉर्मल डिस्चार्ज है। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि कहीं आपका वाटर बैग रप्चर तो नहीं हो गया या कोई प्री टर्म पेन्स की कोई इंडिकेशन तो नहीं है। फिर अगर आपके डिस्चार्ज में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ब्लड है तो आपको एट एनी केस डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ब्लड स्टेन डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने में नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होता, नहीं होना चाहिए। कई बार कई सारे लोग हमारे पास ब्लीडिंग होने के 5-5, 6-6 दिन बाद आते हैं, कहते हैं कि घर वालों ने बोला थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग तो होता रहता है। नो, दैट्स नॉट ट्रू। ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर में ये दो अलग अलग टाइप के डिस्चार्जेस को आपको डेफिनेटली डिफरेंशिएट करना चाहिए कि वाटरी डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल है या डिलीवरी होने के आसार होंगे उस समय तभी होएगा। तो वाटरी है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर वो स्टिकी है और कम है क्वांटिटीज में तो फिर आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल होता है। Right, right, ma'am. Ma'am, one question is that Innu Singh उन्होंने पूछा है, thank you for your question. उन्होंने पूछा है कि is vaccination safe during pregnancy? Okay, vaccination, you are talking about which COVID vaccination or your the tetanus या कुछ? I mean, we have एक तो उन्होंने tetanus सिर्फ का वैक्सीनेशन ही पूछा है। हाँ, वैक्सीनेशन बोला है। कोविड, she has कोविड, specified ओके, COVID. यस। या आई थिंक हमने अपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो मेरा एक लास्ट सेमिनार हुआ था, देन आई हैड टोल्ड यू दैट वी हैव गाइडलाइंस फ्रॉम आवर सोसाइटी, दैट इज फॉक्सी, जिन्होंने गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशंस दिए थे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों क्योंकि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है तो हम उनको प्रेग्नेंट लेडीज में यूज कर सकते हैं। तो इट कैन बी गिवन। तो यूएसए और यूके में जो उनकी वैक्सीन है उन्होंने पहले ही ओके कर दी थी कि प्रेग्नेंट लेडीज यूज कर सकती हैं। तब से आई थिंक अबाउट मेरे ख्याल से 15 डेज या 1 मंथ हो गया होगा जो हाँ, हमारा yes. लास्ट It is टॉक like हुआ 1 था, month almost. Yes, ma'am. ऑलमोस्ट 1 मंथ। एंड दैट वाज आई थिंक 1 or 2 days ही हुए थे जब फॉक्सी ने ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी थी। एंड yesterday, that is Friday, we have got the first recommendation from the center, from the government of India, that yes, the pregnant ladies can be immunized for COVID vaccine, and either Covishield or Covaxin, they can take either of the vaccines and they are safe. Though in the pamphlet of the vaccine, it is written that it is not safe for pregnant ladies, because when the manufacturers had released it, at that time the research was not adequate and they also had not done any trials on pregnant ladies, so they cannot write it is safe. But now since it has been proved vis-a-vis getting COVID, it is better to take the immunization. So if you have the chance and you are pregnant, definitely take the immunization. There is no risk. Yes, ma'am. So ये वैक्सीनेशन आपको आपने वो ग्रुप पे भी अपने डाला था कि हाँ हाँ हाँ. बट मैम कोई भी ट्राइमेस्टर में इज इट सेफ टू टेक वैक्सीनेशन? You can avoid it in the first trimester because at that time वो organogenesis होता है. Theoretically speaking, it is not, but practically I would say avoid it in the first trimester. After that तो organs तो सारे बन गए हैं बेबी के,
तो कुछ रिस्क नहीं होगा, आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप ले लीजिए. Okay, so the answer is yes, you can, You should vaccination take is the safe vaccine. during pregnancy. Yes, Yes. but then again there is a word of caution that you take the vaccine, but then don't forget that even after taking the vaccine you can get COVID, though it may not be that severe. So the guidelines that have been given, that sanitization, washing of your hands and masking, that you cannot stop Avoid, doing yes, that. yes. Yes, you have to still do that. So you have to do the distancing and everything as you were doing even without taking the vaccine. Okay, okay. If anyone is having other question, you can just write in chat box. Otherwise, you can ask directly also. You can just raise your thumb. I will do you unmute. मैम अपार्ट फ्रॉम दैट एक और क्वेश्चन था जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड था. जैसे अभी तो ट्रेन एंड बस की ट्रैवलिंग वैसे भी नहीं है, बट इज इट सेफ लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर जो किसी को ट्रैवल करना हो, और क्या वो स्पेसिफाई है डिस्टेंस से, यानी लंबा डिस्टेंस हो तो नहीं कर सकते, शॉर्ट डिस्टेंस हो तो आप कर सकते हो? ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं, कि अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा इश्यूज ये रहते हैं, बिकॉज आपको जल्दी जल्दी यूरिन के लिए जाना पड़ता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में यू कैन नॉट होल्ड यूरिन फॉर टू लॉन्ग, एंड अगर आपने होल्ड किया तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन आपके बच्चे के लिए भी हार्मफुल रहता है. तो इन केस यू आर ट्रैवलिंग बाय बस फॉर अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो बस तो घड़ी घड़ी आपके लिए रुकेगी नहीं. मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में तो कई बार ऐसा होता है कि आपको आधे आधे घंटे वॉशरूम जाना है. So how will you manage that in a bus for a long distance? And then if you cannot do it, you will hold it, and that is going to become very uncomfortable, और आपको इन्फेक्शन होने का चांस है. दूसरा, आपको बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने पड़ेंगे घड़ी घड़ी. Train is more comfortable because you can lie down. Or even bus mein nowadays you have good buses where you can lie down, but at least you have a washroom handy at all times, because if you have to visit the washroom very frequently, then trains are better. For long distances, I would prefer to go by train, and prefer you to go by train than to go by bus, because then the jerks and all are also less. Agar bus ke vis-a-vis, I think train is safer. Yes, ma'am. Okay. So we'll just wait for 2 to 3 minutes. और भी किसी को हाँ एक क्वेश्चन आया है from ग्रीष्मा, थैंक यू. उन्होंने पूछा है कि is it is really helpful. उन्होंने तो She's just thank saying you thank. bola hai. Yes, yes. Yeah, but if there are any other questions, I would really be happy to solve it out right now. Because this is a platform where we can discuss things, and आपके जो doubts है वो अगर मैं clear कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी इस बात से, कि किसी के भी मन में कोई भी डाउट हो. मैंने काफी मतलब सब सोच के क्वेश्चंस सोचा था ऑलमोस्ट कि हो गए हैं काफी अलग अलग. टॉपिक्स हमारे तो मैत्री मैडम ने कवर ही कर लिए हैं. फिर भी और कुछ खाने के बारे में कुछ चीजें मैं ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर मैत्री, बिकॉज आई Yes, थिंक yes. पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि Yes. देयर आर सम थिंग्स जो हमारे इंडियन सिनेरियो में है रिगार्डिंग द न्यूबॉर्न बेबी. सिंस आप मदर बने हैं तो आप फिर न्यूबॉर्न बेबी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी. इंडिया में बहुत ज्यादा ये सब चीजें हैं कि जैसे बेबी बॉर्न होता है तो जो मदर्स है वो बहुत सारा काजल लगाती हैं अपने बच्चों को. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हमें बता देना चाहिए कि ये जो काजल होता है ना, ये सेफ नहीं रहता बच्चों की आंख के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर पार्टिकल्स. और बच्चे की जो आंख का जो स्क्लेरा और कंजंक्टिवा वगैरह रहते हैं वो बहुत डेलिकेट रहते हैं, और काजल से आंखें बड़ी नहीं होती है. बच्चा आपका आंख बड़ी लेके ही आता है, और हर बच्चा खूबसूरत होता है. तो प्लीज डोंट यूज काजल इन द आईज. तो आपको नजर नहीं लगे इसके लिए आप यहाँ टिकली लगा सकते हो, बट प्लीज डोंट यूज काजल. फिर कुछ और चीजें हैं जो कि मैं मेरी प्रैक्टिस में देखती हूँ, कि बहुत सारे मदर्स जो है वो बच्चे के की मालिश वाली को अपना बच्चा हैंड ओवर कर देती है फॉर द मालिश, एंड इतना ज्यादा खुश महसूस करती है कि आधे घंटे मेरी मालिश वाली ने मेरे बच्चे को मालिश किया. बट
हमारे मतलब बच्चे को वार्म रखना ज्यादा जरूरी है, वो मालिश कम जरूरी है। आप लाइटली बहुत फास्ट एक मसाज कर देंगे तो चलेगा, वो भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट प्लीज आप बेबी को बहुत लंबे आधे आधे घंटे ओपन मत छोड़िए। बेबी कई बार हाइपोग्लाइसीमिक और हाइपोथर्मिक हो जाते हैं सिर्फ क्योंकि मालिश वाली बातें करते करते मालिश कर रही है, एंड शी इज नॉट रियलाइजिंग कि कितना टाइम उसने बच्चे को खुला छोड़ दिया है और उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। फिर कई मालिश वालियां जो है वो बच्चे के नाक में, कान में तेल डाल देती हैं कि ओ ये तो बहुत ड्राई हो रहा है तो तेल डाल देना। इट इज सो कॉमन, एंड कोई भी ये रियलाइज नहीं करता कि नहीं नहीं तेल कैसे कान में और नाक में। तो आपको ये बताना चाहूंगी कि नाक में और कान में उस तेल को निकालने की कोई जगह नहीं होती है। अगर हम अपने बच्चे के नाक में और कान में तेल डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा, कई बार तो मदर्स मिल्क भी डाल दिया जाता है नाक में और कान में। प्लीज ये मत करिए, बच्चे को निमोनिया हो जाता है, वो बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायक रहता है। तो इसके लिए ये सब मत करिएगा अपने बच्चे के साथ, और होने भी मत दीजिएगा अपने बच्चे के साथ। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज है कि स्पेशली मॉडर्न डे मदर्स के लिए कि ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छी चीज होती है, तो डेफिनेटली आप अपनी पौष्टिकता का ध्यान रखें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और ट्राई कि फर्स्ट 6 मंथ्स आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क दे सके। उससे आप अपने बच्चे को बहुत सारी एंटीबॉडीज वगैरह देंगे। तो वो थोड़ा पोस्ट डिलीवरी मदर्स के लिए और वुड बी मदर्स के लिए कुछ टिप्स हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं। मैम ये वो घसारा, घसारा भी शायद आपको पता होगा, वो छोटा सा वो घिसने का आता है, हाँ और हाँ वो उसमें वो खारे घिसते, सोना घिसते, चांदी का वो पॉइंट रहता है ना, वो घिसते हैं। हाँ। और फिर उसमें ग्राइप वाटर डाल के भी बच्चों को देते, वो मालिश वाले बाई नहीं पिला नहीं नहीं, देती है। तो ये बिल्कुल सब भी नहीं। चीजें भी हेल्पफुल रहती। इंडियन नहीं ट्रेडिशन में इट इज वेरी कॉमन, कि जिससे वो नहीं, बोलते हैं कि बिल्कुल बेबी भी का नहीं। ब्रेन बहुत स्ट्रांग होगा, सोना चांदी जैसा स्ट्रांग होगा। तो नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेबी को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा पानी भी नहीं देना है, नॉट इवन वाटर, कुछ भी। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो बाय द टाइम आई कैन गो एंड टेल देम एनीथिंग, हनी चटा दिया जाता है बच्चे को कि अरे हाँ, यस, न्यू, हनी भी चटाते हैं, हाँ। यस, newborn baby, and by the time the doctor can say no no honey, honey is already in the mouth of the baby. यस, So यस। no, that is very wrong. The baby gets lot of infection because of that honey. We are not supposed to give honey to the babies. The baby should get only mother's milk. If not mother's milk, then any formula milk, nothing except milk. No gripe water, no honey, no hing, nothing. Some people यस, give hing also, कि पेट हाँ, में फॉर दर्द हो गुड रहा था, डाइजेशन, यस। यस, स्पेशली तो दे फॉर गिव हींग कॉलिकी वाटर। बेबी हु इज क्राइंग ऑल द टाइम, और यस इवनिंग के टाइम पे रोता है तब देते। यस, सो नो, नथिंग लाइक दैट, नॉट इवन वाटर, दैट्स व्हाट आई एम यस, सेइंग। यस। मैं ब्रेस्ट, यूजुअली मेरे ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में व्हाट आई टेल टू न्यू मॉम्स, जिनके घर पे जैसे बोलते हैं ना कि ये घसारा दो, ये वो करो, तो मैं क्या बोलती हूँ, ये सारी चीजें आप खुद खा लो ना, वैसे भी वो सब ब्रेस्ट हाँ, मिल्क में आएगा ही। मैं वो, आएगा ही, सही हाँ, बात तो है। वो खारे खाना है, या और हाँ आप हाँ जैसे बता रहे हींग हाँ है, या और भी वो जो अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं कि इट इज वेरी न्यूट्रिटिव, बहुत अच्छा रहेगा बच्चों को, तो मैं बोलती हूँ कि हम्म, आप खुद ही उसको डायरेक्ट खा लीजिए। हाँ हाँ हाँ, अल्टीमेटली डेफिनेटली वो सब चीजें वो बेबी को सब खाएगी। मिल जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन प्लीज बेबी के मुंह में कुछ मत डालो, नथिंग एट ऑल। आफ्टर 6 मंथ दे कैन स्टार्ट, यानी वो जब ऊपर का यस, थोड़ा थोड़ा चालू करे तब हाँ। वो सब कुछ दे सकते हो। एक और मिथ है जो जब तक कि और कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं वाइट चीजें खाऊंगी तो मेरा बच्चा गोरा होगा, और मैंने कॉफी ज्यादा पी तो मेरा बच्चा काला हो जाएगा, मैं केसर खाऊंगी तो मेरा बच्चा गोरा हो जाएगा। आपका बच्चा गोरा या काला जैसा भी होगा वो आपके जेनेटिक्स से होगा। आप सफेद चीजें खाएं या केसर खाएं या कॉफी पिए, उससे आपका बच्चा ना गोरा होगा ना काला होगा, और आपका बच्चा जैसा गोरा या काला होगा वो प्यारा ही होगा। तो इसके लिए डोंट ईट फॉर गोरा एंड काला बच्चा, ईट फॉर योर हेल्थ। ओके। एंड एक और चीज है कि मेरा बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, वो पूर्णिमा था, वो अमावस्या थी, ये था वो था, that also is dependent on your genetics, the sperms that you have inside you, वो आपके हाथ में है ही नहीं। आपके, आप
कि ओवम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि आपका बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसके लिए अपना टेंशन उस पर मत डालो, और आपके खाने पीने से और पूर्णिमा और अमावस्या से ये नहीं डिसाइड हो पाएगा कि बच्चा लड़का या लड़की, तो ये सब चीजें भी माइंड से निकाल दो। Yes, yes, ma'am. Ma'am, one question is there. What type of food should be taken to maintain good AFI throughout pregnancy? ओके, AFI इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, मतलब कि जो बच्चे का पानी होता है, दैट इज AFI. सो अगेन देयर इज अ मिथ रिगार्डिंग दिस आल्सो, कि बहुत लोग समझते हैं कि जो माँ ने पानी पिया वो बच्चे का पानी होता है. नहीं, ये जो पानी होता है, ये जो बनता है वो बच्चे की यूरिन से बनता है. बच्चा अंदर पेशाब करता है, वो पानी होता है ये, और प्लेसेंटल सिक्रीशंस होते हैं, वो पानी होता है ये. तो ये पानी को अच्छा रखने के लिए हम अपने एंड पे ये कर सकते हैं कि हम अपने प्लेसेंटा की हेल्थ अच्छी रखें. तो कुछ चीजें जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, फिर किसी किसी मदर का अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इन सब चीजों से हमारी जो प्लेसेंटा की नसें होती हैं वो पतली पड़ जाती हैं, और उससे वो जो पानी होता है वो कम हो जाता है. अपनी तरफ से हमें हाई प्रोटीन डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी. अगर हम प्रोटीन्स कम खाते हैं, तो चांसेस है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाएगा और हमारे बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है. तो प्रोटीन्स मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, आपके पेट में हर कलर होना चाहिए. तो जो दाल होती है, पल्सेस हैं, वो हाई प्रोटीन होती है. जितनी भी आप पल्सेस खाएं, पालक खाएं, पालक इज वेरी गुड. देन यू कैन हैव चीज, पनीर, milk. That is for the vegetarians, and for the non-vegetarians you can have non-veg like chicken and egg, which is a very good protein. तो जो भी अपना खाना मेंटेन करे वो हाई प्रोटीन खाना मेंटेन करे, जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड, एक्चुअली एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा होने के लिए और बहुत सारी चीजें रहती है, लाइक यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड ऑल दैट, बट हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, ma'am. मैम जिनको जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है बिफोर प्रेगनेंसी, तो जो या दूध नहीं लेते हैं पहले, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाउ दे कैन रिप्लेस देयर मिल्क, यानी कैल्शियम की जो ओके, भी, वो कैसे रिप्लेस करेंगे फ्रॉम एनिमल बेस्ड टू प्लांट बेस्ड फूड को? या लैक्टोज अगर इंटॉलरेंस है तो so many times it happens that they are not being able to digest normal milk. So you can give them a trial with curd, because so many times if you have curd, then you do not, because curd has casein, and casein is easily digestible. So you, if they take good amount of curd, then you don't really have to have milk. But then still, if you are not taking curd and you have problems with curd, then there are other forms of milk like soya milk. So soya milk is equally good. It has a very good quantity of protein, and it is very good for those who have lactose intolerance. They can take soya milk. Then nowadays in the market, we have almond milk also. So even you can take almond milk. And if you don't like the taste of soya milk or animal milk, then you have to look for other sources of proteins. Like Protein and yeah, calcium specially. calcium. Like calcium, you have very good amount of calcium in ragi, that is nachni. Yes. So you have so many things which you can make. You can have rotis of nachni. You have poha of nachni. So try and eat lot of ragi. That is very good. So you will have to find substitutes to calcium and protein if you cannot take milk or curd. But soya milk nowadays you get a lot of flavored soya milk also. तो वो भी taste में अच्छा होता है. So if you cannot take lactose, if you cannot take normal milk, try soya milk, which is very good. Okay, so that is one option that you can replace. But coconut milk we can take during Yes, you can pregnancy. take. Yes, you can take coconut milk also. Coconut milk Okay. also very good, and you have very healthy fats in coconut, so that will be also helpful. Okay, ma'am. Grishma has asked that I have muscle stretching in my right leg. So what exercise can be helpful? But Have stretching means you, mus it is cramp or cramps. stretch because muscle stretching means she's asking in right leg. So I right I leg, think she must be getting cramps. huh? It is calf area or thigh, exactly where the stretching is there. He has written that it's associated with pain. Okay, so if I think
you must be getting either cramps or probably there might be some weakness at the calf region. So one thing is you should have very good amount of water, entire leg, she's saying, entire right leg. Yes. Yes. So go have good amount of water. See if you're having a good diet. See if you're having milk or calcium supplement is a good calcium supplement. For some time, you can double your calcium supplement and then you can add some magnesium also in the form of drugs, because then your doctor will let you know if you can take magnesium. Then ask your doctor if you have adequate vitamin D. Either you can get tested or routinely the doctor can supplement vitamin D also. Nowadays, we do give supplements of vitamin D because most of us are indoor. We don't have exposure of sun, and Muslim ladies are usually in their burqa, so exposure of sun is not there. So it is good to replace vitamin D. If vitamin D is less, then also you must be having muscular pains. So if your calcium intake is good, you have supplemented vitamin D, you are having good amount of water and good amount of rest. And apart from after that, you have muscular pains, then you can meet Dr. Mehri. She will advise you some stretching exercises for the Yes. lower limb, and she will tell you the exercises which you are supposed to do. And I will not advise you to take any painkillers for the pain. If the pain is too much, then you can apply local gels or you can go for a mild massage. Sometimes even massage will help. And she can, ma'am, she can go for this ankle and toe movement exercise. That is very good. It is Yes. very simple exercise, but it is very helpful for reverse blood flow. Then it is helpful in leg cramps, swellings in lower limbs. So any of this will help for her this muscle stretching in right leg. Ankle toe movement is very good exercise. You will have to see that what is the cause of the pain has to be identified. First, she has to work out for the pain, because if pain is there, she can't do exercise. Exercise, So, yes. so she can apply what you told, this local gel. She can take hot water bag fermentation. She Fermentation, can take yes. rest and then calcium supplement. And after that, once the pain is reduced, then she can go for this ankle and toe movement exercise. Yes. And she has to check whether the footwear is proper or not. That is also one question. Yes, If yes, she yes. is standing for long time, if she is going for some job or something like that, so she has to check with her footwear also. So many times I advise my patients कि आप लोग एक ही position में बहुत लंबे मत रहा करो, because what happens, suppose like there are working ladies on the computer for too long, for 8 hours, and they have to do continuous sitting, then they get a lot of swelling in their feet because of continuous sitting. So what you can do is you can work for an hour, then go take a round and then come back. So you should keep on changing your position. And if you're a housewife and you're working in the kitchen, if you're standing for too long, put the gas off, sit down for 10 minutes, raise your legs for some time, and then you can go and continue your cooking. So change positions. If you're even watching TV for, you want to watch a movie for say some time, just take a round and then come back and sit. So keep on changing your position. So that way the circulation of the entire body is maintained well and you will not get stagnated at one time. So that also helps in decreasing aches and pains here and there. Yes, ma'am. Ma'am, one more question is there from Vyoma Patel, that what is the best cream for stretch marks? I think we have talked about the stretch marks. Probably she had joined late or she didn't understand. So there is no cream that is going to prevent or not let you have stretch marks. If you have to have them, you will have them. You will get some psychological satisfaction if you use some key cream. So you can use any cream that your doctor likes. I would say that way. And you can use any household remedy, like you can use coconut oil. You can use any moisturizer which you have already have. You don't have to spend a lot of money, because the ad agencies are going to give you creams worth some 500 rupees or 600 rupees. And then if you start using them, you'll be spending a lot of money for something which you cannot control. So stretch marks अगर होने होंगे तो वो होंगे. आप सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हासिल कर सकते हो कि मैंने किया, अपना कर्तव्य पूरा किया. But after that, ma'am, ऐसे भी post delivery के after 2 or 3 months के बाद they become thin, the lining become thin, it Yes, fade out. yes. जितने हाँ, हाँ. pregnancy में वो prominent दिखते,
एंड हाँ हाँ वन टर्म इज दैट टाइगर टमी, जो एंड में किसी हम्म। को स्ट्रेच मार्क पूरे रेड रेड भी होते, पूरा टाइगर टमी हाँ जैसा। हाँ हाँ बट डेफिनेटली हाँ, पोस्ट वो डिलीवरी तो पोस्ट कम हो डिलीवरी ही वो जाएगा। स्ट्रेच कम हो जाता है, तो वो कम हो जाता है। प्लस एक और चीज है कि पोस्ट डिलीवरी अगर आप अच्छे से एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करो तो भी वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उससे क्या है, आपका टमी टाइट हो जाता है ना। नहीं तो एकदम लूज लूज पड़ा हुआ है तो वो स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा दिखते हैं। और अगर आपने एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करी हुई तो आपका एब्डोमेन का टोन वापस आ जाता है, तो आपकी स्किन भी थोड़ी टाइट हो जाती है, तो वो थोड़ा दिस इज कम वन हो जाता रेमेडी है। वी हाँ, कैन से फॉर स्ट्रेच मार्क, जो स्ट्रेच आगे मार्क्स, जाके यस। आपके लिए ये हेल्पफुल है, बट हाँ हाँ नॉट रियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, प्रेगनेंसी में you can do whatever, I will say, you use your oil whichever or your cream whatever you like, but don't expect much from that. राइट ये मत राइट सोचो मैम, कि नहीं होएगा। यस यस यस, दैट्स ट्रू मैम। आई होप सारे मोस्टली क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए। अभी भी और किसी को पूछना है तो विल वेट फॉर 2 to 3 minutes, अदर विल एंड अप विद आवर सेशन टुडे। और भी किसी को कोई भी क्वेरी हो तो फिर आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। एंड मैम आप आपका ये डाल दीजिए अगर जो कांटेक्ट नंबर और हॉस्पिटल हाँ का। तो ठीक है, यस, इन ग्रुप आई विल या पुट इट चैट ऑन द बॉक्स ग्रुप। पे, हाँ इन चैट बॉक्स यस, पे भी डाल देंगे। तो किसी को भी एनी गायनेकोलॉजिकल कुछ भी आपको प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी में आपको मैडम को दिखाना है, कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट। मैम मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल देती हूँ आपका। हाँ हाँ या so if anybody has any doubts, and if there may be some people who may be shy to ask some questions, एक common forum में उनको ऐसा लगेगा शायद कि ये मेरा question बहुत personal है, ये मुझे नहीं डालना चाहिए, या कोई हो सकता है किसी की साइकोलॉजी या इस सब से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो वो आपको लगे कि ये मुझे नहीं डालना चाहिए, तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉर्ट इट आउट फॉर यू। और जो भी मेरी तरफ से बेस्ट मैं आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होगी वो सॉर्ट आउट करने में। Yes. So, ma'am, we'll end up with a session today. Uh, यस, thank you all the participants and thank you so much, ma'am. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का, और आपने उसको और इंटरेस्टिंग बनाया, और सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किए। सो आई एम ऑल्सो वेरी हार्टिली थैंक्सफुल टू यू। थैंक यू डॉक्टर मैत्री, मुझे आपका ये इनिशिएटिव इतना अच्छा लगा, आप इतनी हार्डवर्किंग है और खुद प्रेग्नेंट होते हुए भी आप इतना टाइम निकाल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड एक कॉमन फोरम में अगर हम ये सब टॉपिक्स डिस्कस करें तो शायद कल हमको, हमारी जो प्रेग्नेंट मदर्स है वो कई बार सफर करती है क्योंकि उनको बहुत सारे मिथ्स रहते हैं और वो सॉर्ट आउट नहीं होते, और कई बार उनको कुछ टॉर्चर भी सहना पड़ता है इसकी वजह से। तो सिंस अब उनकी नॉलेज अपडेटेड हो गई है तो दे मस्ट बी नोइंग कि हाँ मुझे क्या खाना है, क्या करना है, और दूसरों की बातें सुनने से बेटर है दे विल यूज देयर नॉलेज। सो आई एम यस सो हैप्पी यस मैम। कि मैं ये इसकी ट्रेनिंग होनी जो चाहिए। रिकॉर्डिंग है दैट आई विल, मैं उस पे यूट्यूब मेरा जो चैनल है उस पे भी अपडेट कर दूंगी। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स है वो भी जो भी आपके रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, जिसको भी आप जानते हो जो प्रेग्नेंट हो, तो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मैडम ने जो भी नॉलेज शेयर किया है तो वो लोग भी सब जानकारी ले सके। जो मैम ने बताया कि कितनी बार सब दिक्कत सहनी पड़ती है और फिर मन में वो कंफ्यूजन रहता है, सो मेनी डाउट्स आर देयर, सो वो अच्छे से हैप्पीली प्रेगनेंसी पास नहीं कर सकते। सो बेटर ये सब थोड़ी जानकारी ले तो उनके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। सो आप हो सके तो जितने लोगों को आप शेयर कर सके तो उनको कीजिएगा, जो भी प्रेग्नेंट है या वुड बी मदर्स अदरवाइज दे आर प्लानिंग, सो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
So moving to the end, and we'll end up with our session today. Thank you, Dr. everyone. Maitri. Yeah. And thank you, everybody. Okay, bye. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, everybody, for listening. And I hope you all enjoyed. Yes, ma'am.